So today I have to show you some things, ठीक है? कुछ चीज़ें आप लोग को दिखानी है और आप लोगों ने मुझे बताना है कि किस किस्म का इंसान इन चीज़ों के साथ रहता होगा. Exhibit A. What can you see? A teenager. Okay. What can? Huh? A traveler. A mechanic. Okay. This looks like a very. What does it look like? A basement. किसी ने कुछ कहा यहाँ पे unorganized. This is a very key word today. Unorganized. Okay. आगे कीजिएगा. What does this look like? Same. Unorganized. Unorganized. Umar Abdullah का office. Talking of Umar Abdullah, where is he? Okay, we're missing him, but inshallah जल्दी आएगा ना तो उसके साथ भी हम लोग लगाएंगे. This looks like a very disorganized place, right? Yeah, looks like somebody is trying to be author and he's not successful. Yeah, somebody is having a writer's block and he's spreading paper all over. This looks like somebody who's really, really, really messy, right? Yeah. आगे कीजिएगा. What does this look like? इसकी लाइट थोड़ी सी एक लाइट अगर हम एक लाइट ऑफ करें तो इसको ज़्यादा क्लियरली देख पाएंगे. सर एक लाइट ऑफ कर दें ऊपर वाली. What does this look like? It's a wardrobe. Is that your wardrobe? I don't know, maybe. Because you're wearing the same dress. I got busted. Yeah, this is my wardrobe and it looks like this. It looks like a disorganized pile of nothing. आप देखें यहाँ पे सारे कपड़े ऐसे पड़े हुए हैं. ऊपर वाले थोड़े से तरतीब में हैं लेकिन नीचे वाले बहुत ज़्यादा मैसी हैं और जूते तो अल्लाह ही पूछे. So this is actually my wardrobe and this is exactly how it looks in this moment. अभी घर जाएंगे तो ये ऐसे दिख रही होगी. I'm trying to tell is this executive skill I struggle with. This is the executive skill of, आगे कीजिएगा please, organization. So when you have a disorganized environment, जब इर्द गिर्द हर चीज़ disorganized हो, हर चीज़ clutter में हो, तो क्या लगता है आप लोगों को दिमाग आपका सुकून में होगा? दिमाग आपका clutter free होगा? Do you think? So would you say that the environment actually shapes how your mind is? Would you say that? Right? Yeah. So there's this saying which says, a cluttered mind will never lead you to a clear path. So my wardrobe, which is very disorganized in this moment, is a clutter. And that clutter is causing my mind to be in another clutter. True? When it's in another clutter, I cannot think straight. Thinking straight has become a predicament, right? Light on कर दें वापस please. Lights please on कर दें. So we're going to learn on कर दें. Thank you. So today we're going to learn all about it. We're going to learn organization. आगे करें. Our executive skill is organization. We were just missing you. आ जाएं. Walaikum assalam. I'm very well. Which slide? I'm so glad that when I come on stage, you guys are cheerful and talking because this is how it should be, inshallah. हर Thursday को we have this time where we talk about our shared weaknesses. Because आपके पास कोई एक ऐसा बंदा आके आपको बताता है कि मेरी स्टोरी भी यही है. Optimism के साथ पहला बंदा. Optimism के साथ पहला बंदा. Very good. Okay. So I also struggle with it. Who over here does not struggle with it? कौन बहुत अच्छा organization के साथ? मैं बहुत अच्छा हूँ.
आपकी ऑर्गेनाइजेशन सर, आपकी एक और स्किल भी बहुत अच्छी थी जो बहुत बुरी थी बाकी सबकी. ये मैं अच्छा स्टूडेंट था शुरू से, मैट्रिक तक मैं सिर्फ स्टडी की. ओके, बिकॉज आपकी एग्जेक्टिव स्किल्स में देख रही हूँ थोड़ी स्ट्रॉन्ग हैं, स्ट्रॉन्ग साइड पे हैं. आपकी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है. Yeah, I wake up at 5:30. I take my bed and my room. जहाँ भी मेरा पेपर वर्क पड़ा होता है वो मतलब मेरी मेट्स को भी पता होता है कि नहीं टच करना, क्योंकि आई नो वेयर द कौन सा पेपर मैंने किधर रखा है, कौन सी कोड फाइल किधर रखी हुई है. That means you're very organized. That's good. That's a good thing. That's also it's a part of enterprise content management as well. Okay. मतलब आपको मौके पे चीज़ मिल जाए और आपको ज़्यादा ढूंढना ना पड़े. That means that he's very organized. वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बहुत organized हैं. आपस में नहीं, मुझसे बातें करनी है, ठीक है? अब मुझसे बातें करनी है, आपस में नहीं. आगे कीजिएगा प्लीज़. मुझे किसी पे डायरेक्शन तो कुछ So what is organization? Organization is the ability to create and maintain systems to keep a track of information and materials. इसके ना दो keywords हैं. एक होता है create करना system, एक होता है maintain करना system. ये दोनों बहुत मुख्तलिफ चीज़ें हैं लेकिन equally important. कोई मुझे बता सकता है कि जो मेरी इतनी गंदी wardrobe थी उसके लिए कोई सिस्टम क्रिएट कैसे किया जाए कि वो साफ़ रहे? हाउ कैन आई क्रिएट अ सिस्टम जिससे वो साफ़ रहे? सर जी, प्लान करके. ओके, लेकिन प्लान एक एब्स्ट्रैक्ट वर्ड है ना. एक word missing is definition. you can fold them different. ओके, दैट इज़ वन सिस्टम. और मेंटेन कैसे करूँ मैं उस फोल्डिंग को? लेकिन आप By keeping a check on them when you use them. वेरी गुड. एक और सिस्टम ये भी हो सकता है कि जब कपड़े इस्त्री होके आए तब मैं उनको खुद हैंग करूं और हर सैटरडे को मैं चेकअप करूं. वो हैंगर जो बचे होंगे वो फिर यूटिलाइज हो जाए जब दोबारा से लॉन्ड्री आएगी. What I'm trying to tell you is that the definition tells us that we need to create systems and then we need to maintain systems. Now मेरी प्रॉब्लम ये है कि I'm very bad with consistency. मैं कंसिस्टेंटली कोई काम नहीं कर सकती क्योंकि पता नहीं क्या बाइपोलर है या आई डोंट नो व्हाट. इट्स जस्ट I was coming at that. It's a miracle from God that I'm consistently giving presentations every Thursday, Missing है इस definition में से. or that I'm really scared of Ma'am Uzma. One or two things. I think so. That's a scary. Yeah, I think management is the word that's missing from this. you're right. This is छापा मारा है मैंने बुक से. Exactly ऐसा बुक में लिखा हुआ है. तो हम लोग ऐड कर लेंगे. मैनेजमेंट काफ़ी ज़रूरी होती है. You're right. You're absolutely right. So this is what we need to do. इस पूरी presentation में we will try to create systems and we will try to maintain systems. आगे कीजिएगा please. This is a very complex किस्म की executive skill. It uses more than one part of your brain. ब्रेन का हमने कहा है कि एक है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जहाँ से सारी एग्जेक्टिव स्किल्स आती हैं. बट जो ये वाली है एग्जेक्टिव स्किल वो आपके ब्रेन के एक लोब से ज़्यादा लोब्स यूज़ करते हैं. आपको लास्ट टाइम मैंने बताए थे कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोब्स होते हैं. अब आपको याद है? ओके, नाउ कैन यू नेम देम? बोर्ड पे ही हैं. Yeah. Right. Cerebellum. So there are 4 lobes. Cerebellum is another part of the brain. It's not a lobe. 4 में से 3 parts आपका use करता है planning and organization. So it is a very complex किस्म की executive skill. It uses your parietal lobe, it uses your temporal lobe and it also uses your frontal lobe. 3 lobes यूज़ कर रहा है. अगर आपने अपना दिन schedule करना है तो उसके लिए अलग एक lobe है. अगर आपने अपने घर को स्पेशल अरेंजमेंट करनी है उसके लिए एक अलग लोब है. और इस लोब की अमालगमेशन के साथ आपके साथ ये एग्जेक्टिव स्किल बनती है. सो यू गाइज नीड टू नो कि हम लोग कभी अगर इफ़ यू नॉट गुड एट ऑर्गेनाइजेशन दैट्स ओके बिकॉज इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स वन. आए करें. सो व्हाट डू वी जैसे कर सकते हैं इस बॉडी पार्ट ऑफ द ब्रेन को कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन बेहतर हो जाए.
हर चीज़ प्रैक्टिस होती है और मैं आप लोग को बताऊंगी। हर्ब्स हैं जैसे कि गिंगो बिलोबा एंड लाइक अश्वगंधा, दीज आर लाइक फूड सप्लीमेंट्स जो आपकी मेमोरी बूस्ट करते हैं और ये चीज़ें करते हैं। My mamu is into all of this herbal किस्म की चीज़ें. I will learn more from him and let you know. Okay. Okay? So his question was how to be more organized, which is the question we all have right now. How do we become more organized? Ajmal, would you say कि ये at least एक ऐसी executive skill है जो आप use कर सकते हैं? Because I remember जब मैं working memory आपको बता रही थी, you were like no, मैंने नहीं पढ़ना. ये एक है चीज़ जो कर सकते हैं. ठीक है. How to be more organized and how will it help us as patients? आपको क्या लगता है कि हमें as patients, how do we benefit from organization? How do we benefit from organization? It helps us, it keeps us relaxed. Okay. हम अपनी इन्वेंट्री बना सकते हैं अपने पर्सनल वार्निंग साइंस की, सुबह सुबह उठ के 5-10 मिनट में कि हमने किस तरह अपने वार्निंग साइंस ऑफ एडिक्शन को मैनेज करना है, और हम इवनिंग में रिव्यू कर सकते हैं through Okay. metacognition. Okay. Okay. Somebody else? You can do your daily tasks. That's okay. Okay. उसके अलावा? You have to make time every day to organize your things. Right. Okay. Now I will give you some tips and tricks जिससे आप लोग अपनी organization को और बेहतर बना सकते हैं. There are I think 3 or 4 tips, but I hope they help you. Okay? आगे कीजिएगा. Tip number 1, to-do lists. Who here knows about to-do lists? And who here likes to-do lists? You? Umar was like to-do lists and then to-do lists. किसको to-do list पसंद है? आपको भी, मामा को भी, आपको? आपको क्या पसंद है? आंटी को भी पसंद है? It's very helpful. I'm so disorganized, but to-do lists are like saviors for me. अगर मैं बहुत ज़्यादा mismanaged हूँ ना, तो to-do lists ने मुझे बहुत help किया है. और उसने तो डायरीज रखी होती हैं इस काम के लिए. कि डायरीज मैंने एक चार्ट को मंगवाया था जिसने मुझे हेल्प किया था, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी भी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी. सो टू डू लिस्ट एज एन एडिक्ट, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इसके पीछे साइंस है, और वो मैं पहले आपसे पूछूंगी क्या साइंस है. It keeps us reminding what we need to do and what is more important. ओके ओके, दिस फॉर श्योर. आप बताएंगे जो बहुत हंस रहे हैं. हाँ, मैं तो आई डोंट लाइक, मुझे तो बनाना पसंद ही नहीं है. लेकिन अब आप बनाएंगे इंशाल्लाह, और इसके पीछे एक रीज़न है. बस अपनी मेमोरी में आई थिंक आप इतनी ज़्यादा चीज़ें स्टोर नहीं कर सकते हैं. वर्किंग मेमोरी ख़राब हो गई है बिकॉज एडिक्शन आप कर रहे हैं. एडिक्शन आप कर नहीं रहे, एडिक्शन में आप हैं, तो उसकी वजह से. मिस्टेक ऑफ ट्रस्टिंग. दैट्स ऑल्सो राइट. अपनी मेमोरी को ट्रस्ट करने वाली गलती नहीं कर सकते हो. ये भी हो सकता है, लेकिन एक इसका बेनिफिट भी है. कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज़ द बेनिफिट? व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ अ टू डू लिस्ट? मैं बताती हूँ, और इसके बाद इंशाल्लाह आप सब बनाएंगे. इसका बेनिफिट ये है कि अब आप ड्रग्स नहीं कर सकते. ट्रू? वो तो अब निकल गया ना, तो अब डोपामीन कैसे लें? बिल्कुल, एग्जैक्टली. ये छोटे पैकेट्स डोपामीन के अब आपको हार्वेस्ट करने पड़ेंगे. अब वैसे तो आपको मिलने नहीं वाली, तो अब आप जब अपनी टू डू लिस्ट बनाएंगे तो किसी ने वो टू डू लिस्ट को काटने का मज़ा किसी को पता है? वो जो मज़ा आता है ना, अब आपने वो उसको सीख करना है. वैसे तो कोई अब आपको खुशी नहीं मिलने वाली मसनूई किस्म की. सो जब हम इस तरीके से एक टू डू लिस्ट बनाते हैं और अपने टास्क को अचीव करते हैं, तो 2 न्यूरोकेमिकल्स रिलीज होते हैं, डोपामीन और दूसरा कौन बताएगा? सेरोटोनिन. वेरी गुड, उमर, यू वेरी स्मार्ट. So serotonin and dopamine. This is the dopamine that now you should seek. Okay? आर्टिफिशियल डोपामाइन. आगे कीजिएगा. नेचुरल डोपामाइन है ना. ओके. ड्रग से तो आर्टिफिशियल डोपामाइन देते हैं. हाँ, अब वो नहीं हमने करनी, वो नहीं करते. वो नहीं करनी. प्लीज़ आगे करें.
बुक में एक टू डू लिस्ट बनी हुई है जो बहुत एफिशिएंट है और आप लोगों को साथ भी मैंने कहा शेयर करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग हमेशा सिर्फ टास्क लिखते हैं, लेकिन एक और भी तरीका है जिससे आप और भी एलिवेट कर सकते हैं उसे। आगे प्लीज़ दिखा दें और फुल स्क्रीन कर दें। फुल स्क्रीन करते हैं। थैंक यू उमर। मतलब फुल स्क्रीन आना हुआ तो उमर ने पीछे जाके करवा के लेके आना है ना। फुल स्क्रीन कर दे प्लीज़ ताकि हम रीड कर सकें। अच्छा ओके मैग्नीफाई करते हैं। हाँ, ठीक है। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे मेरे पास आज अपना पॉइंटर नहीं है, लेकिन स्टेप्स आपको दिए हुए हैं और टास्क्स दिए होते हैं, लेकिन कभी कभार हम टास्क को प्रोलॉन्ग कर देते हैं। तो इसके अंदर आप अपना एक टाइम फ्रेम डिसाइड करें कि मैंने इतने टाइम से इतने टाइम में ये काम कंप्लीट करना है। फॉर एग्जांपल जो मेरी मेसी वार्डरोब थी उसका मैंने एक टाइम सेट करना है, संडे को सुबह हर रोज़ 10 बजे, ये टाइम फ्रेम मैंने सेट कर लिया। अब इसके साथ अगर मैं टाइम फ्रेम सेट कर देती हूँ तो एम आई मोर लाइकली टू डू दैट टास्क? I am more likely to do that task. And when will I do it? So this is a way in which you can categorize or elevate your to-do list. Okay? I करें? I करें? This is my, oh, पीछे करें? इसको zoom in कर दें? This is actually my daily planner. मैंने ये आपको पता है कैनवा का एक ऐप होता है, कैनवा पता है? कैनवा का पता है? हाँ, जिसके ऊपर आप वो फोटोशॉप और पता नहीं क्या कुछ, यू यूज़ इट अ लॉट। सो बेसिकली कैनवा के ऊपर से यू कैन ईजिली फाइंड डेली प्लानर्स जो आप प्रिंट कर सकते हैं या अपने लिए यू नो इट्स अमेज़ॉन के ऊपर इतना बिजनेस कर एग्जैक्टली। डेली प्लानर वैसे एक वो रजिस्टर्स भी आ गए, वो बुक्स भी आ गई, हाँ। वो भी फिट बनी होती है। मेरे पास आई हैव वन ऑफ दोस टू डू लिस्ट। या जिसके ऊपर इंटेंशंस ऑफ द डे, टॉप प्रायोरिटीज़, इवन वेदर भी लिखा होता है कि आप हाँ। आज मौसम कैसा है। मेरे पास एग्जैक्टली वो वाला था और मैं अपने तजर्बे से बता रही हूँ कि वो हेल्प करता है। तो अगर आपसे खुद नहीं बनाया जाता, टू डू लिस्ट नहीं बनाई जाती हैं, तो आप ख़रीद लें, एक प्रिंटेबल ख़रीद लें, तो वो आपको हेल्प कर सकता है। इस तरीके से ये देखिए, टॉप प्रायोरिटीज़, टुडेज़ गोल्स, अपॉइंटमेंट्स और दिन का स्केड्यूल, यू कैन हैव दीज ईजिली अवेलेबल ऑन कैनवा एंड यू कैन जस्ट डाउनलोड दैम। ठीक है, आगे करें। स्टेप नंबर 2, व्हाट इज स्टेप नंबर 2? प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। डीक्लटर, क्लटर को हटाना, जो मेस हमने अब क्रिएट कर लिया हुआ है उसको हटाना, उसको रिड्यूस करना। अब डीक्लटर का मतलब आप लोगों के लिए माइंड का डीक्लटर हो सकता है, क्योंकि कभी कभार माइंड बहुत ज़्यादा फॉगी हो जाता है, अपनी वार्डरोब का डीक्लटर होता है, वट एवर इट इज़। बुक टेल्स अस अ वेरी गुड मेथड टू डीक्लटर and that is, I call it the 3 boxes method. आए कीजिएगा। Here on the screen are 3 boxes. One is to keep, don't know, to throw. Okay? Keys to mental health. Yeah. What things do you need to keep, things you need to throw, and things you don't know. Yeah. So इन 3 बॉक्सेस में आप अपना क्लटर को कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे घर में बहुत देर से सफाई नहीं हुई, अब कुछ चीज़ें तो आपको राइट अवे पता है ये चीज़ें फेंकने वाली हैं, राइट? उसको आप किस बॉक्स में डालेंगे? फेंकने वाली। और जैसे रैपर्स हो गए, समथिंग दैट यू डोंट वांट टू यूज़, राइट? सो दोज आर थिंग्स टू थ्रो। जो चीज़ें आपने कीप करनी है, जैसे आपका फ़ोन, आप कभी भी ज़िंदगी में अपना फ़ोन तो नहीं फेंकेंगे, राइट? तो वो जब मिलेगा टू कीप, पुराना वाला फेंक देंगे, नया वाला तो कभी जो यूज़ कर रहे होंगे वो तो कभी भी नहीं फेंकेंगे। अब तो मिलेगा तो अहमियत भी ज़्यादा होगी। एग्जैक्टली, हाँ, मुझे मिलने वाला है, फिंगर्स क्रॉस्ड। एंड डोंट नो बहुत इंटरेस्टिंग है। डोंट नो के अंदर ये होता है कि आपने कुछ चीज़ें होती हैं जिसका आपको पता नहीं होता, और मैं प्रॉपर किस्म की होर्डर, HOARDER, होर्डर हूँ। मतलब कि आई रियली लाइक कलेक्टिंग स्टफ़, और बस कलेक्ट करके रख लेना। कोई मुझे टैग पसंद आ रहा है कपड़ों पे, मैंने रख लेना है।
कोई कार्ड पसंद आया मैंने रख लेना है, और वो इकट्ठा हो के मुझे आई थिंक ड्रॉअर की भी अपनी पिक्चर लगानी चाहिए थी बिकॉज इट वाज सो मेसी। बट ये बात है कि सम थिंग्स दैट वी डोंट नो, राइट, कि इसको फेंकना है कि नहीं फेंकना, तो उनके लिए क्या करें, उसके लिए इस बॉक्स में इनको डाल लें। जब इस बॉक्स में डाल लें उसके बाद अपने उस दिन की डेट लिख लें। डेट लिखने के बाद 3 महीने तक अगर आपको उस बॉक्स में से कोई चीज़ यूज़ ना हो तो फेंक दें, बिना खोले आंखें बंद करके फेंक दें। लेकिन अगर आपको कोई चीज़ मिल जाए तो उसको यूज़ कर लें। ये तरीका होता है डी क्लटर करने का। आपने उस वक्त से कुछ कहना था? I was just saying, like, you know, like you collect stuff, like it's like going to some gift shops that are like, oh, I really want that, but you don't use it whatsoever. Exactly. And that's like, oh, no. Yeah. That's me. You're describing me every single time. It's like a thought as well. Some thoughts that come across your mind that you don't know the answer to yet. You can like jot them down, but after a while, if you know the thought still persists and if you still don't get the answer, and if it's especially something you don't have any control over, then you throw it away. Very good. This also applies to your thoughts. अगर आपको कुछ ख्यालात तंग कर रहे हैं तो अपने लिए वो एक टाइम मुकर्रर कर लें, या फिर अगर ना हो तो उसको कुछ देर के बाद थ्रो अवे कर लें। ठीक है? इट्स डिफ़िकल्ट। आई कीजिएगा। What is this tip? This is actually something which I was just discussing in the meeting right now, but I won't go into detail, but Okay. I'll just summarize it, that if I'm not able to control something which is very important, which is ongoing and is of stress to me, then I will delegate it to someone that can control it so that I can focus on my recovery. Very good. When sometimes things go out of control for us, अगर कभी कभार हमारे हाथ से बात निकल जाती है, हम लोग इतने डिसऑर्गेनाइज होते हैं कि हमसे खुद अपना मेस नहीं क्लियर किया जाता, तो हम किसी की हेल्प सीख कर लेते हैं। हम सब अपने घर में किसी ना किसी को ज़रूर जानते होंगे जो बहुत अच्छा होगा ऑर्गेनाइजेशन में, जानते होंगे। आई एम प्रिटी श्योर घर में एक बंदा ज़रूर होता है, चाहे वो छोटी बहन या मामा, मोस्टली मामा होती हैं, या कोई और लॉयर होता है, कोई हेल्प हो सकती है, हाउस हेल्प हो सकती है। somebody in our house is there who is very good at cleaning up, who is very good at organization. So we can always ask them for help. We can always seek help from them. और बजाय कि हम उनके ऊपर सारा काम थोप दें, हम ये भी कर सकते हैं कि हम उनकी हेल्प करके उनसे कुछ लेके उनको कुछ दे दें। You understand? Like exactly. You scratch my back, I scratch your back. उस तरह का। फीस दे दें। अगर दूसरा लॉयर हो तो फीस दे दें। बट आप लोग को समझ। You scratch my nose, I scratch yours because my nose is not my back. It's a figure of speech, sir. Say it again. It's a figure of speech. Oh, I thought you were talking about that. No, sir. It's about give and take, making win-win situations. Yeah. Okay, so this is about win-win situations. So if your mother is helping you clean a clutter, which my mother does most of the time, you can go make tea for her. आप उनके लिए चाय बना लें. But she should not do at this stage. She should educate. This is the stage that we should do. That's also true. I'm very old to be taking help from my mom, but guys, that's what. क्या करें? Okay. Delegate or ask for help, but not mama's help if you're over 26. This is also, a part of. 10 years के बाद कहते हैं कि बच्चे को independent बनाएं, Okay. which we are not. We are not used to it. Yeah. जब हम बच्चों को independent बना दें। Yes, ma'am. That's also true. आगे कीजिएगा. वैसे you can ask for help, लेकिन साथ-साथ आपको सीखते रहना चाहिए। वैसे सीखते रहना चाहिए, बिल्कुल। I अगर agree. आपको नहीं आता, don't be ashamed कि आप help ना मांगें, लेकिन साथ-साथ learn भी करें ताकि आपको बार-बार help ना मांगना। बिल्कुल. I agree. तो isolation में तो recovery अब possible नहीं है ना। बिल्कुल भी.
आइसोलेशन में आप रिकवर कर ही नहीं सकते हैं. मैं तो what the book tells us as well. बिल्कुल, मैं तो डिजीज़ को ना एक मोल्ड की तरह देखती हूँ. मोल्ड का पता है? इनका नाम क्या है? अच्छा, मोल्ड का पता है लोगों को? मोल्ड होता है जो कि प्रॉपर्टी को किसी भी जगह को जो कि लग जाता है, जैसे उसको हम कहेंगे कि पानी से भी वो हो सकता है मोल्ड. बिल्कुल, जैसे फंगस होती है, मोल्ड होता है. उसको मैं कहती हूँ कि जितना आप अकेले रहोगे वो उतना बढ़ेगी, मोल्ड की तरह. जैसे मोल्ड अकेले डैम्प एरियाज में बढ़ती है, उस तरीके से आइसोलेशन बढ़ती है. लास्ट टिप मेरे पास आपके लिए ये है, मेक अ रूटीन. रूटीन बहुत इम्पॉर्टेंट है. रूटीन बहुत इम्पॉर्टेंट है. एक इधर खड़े हुए थे, एक रिकवरिंग एडिक्ट, उन्होंने कहा था मेरी हायर पावर मेरी रूटीन है. जो उनकी रूटीन थी उन्होंने उसको ही अपना हायर पावर बनाया था, बिकॉज वो उनकी इतनी इंपॉर्टेंट थी. मुझे कोई बता सकता है कि रूटीन अगर आपकी सेट हो तो आप कैसे एक ऑर्गेनाइज्ड लाइफ जी सकते हैं? There was this saying by Paulo, I don't know what it's... Paulo Coelho? Yeah, it said that you think adventure is dangerous, try routine, it is deadly. Very good. I should have put this in my Yeah. presentation. It's a very good one. But You think adventure is dangerous, try routine, it is deadly. so you make a routine. जब आपके पास एक रूटीन होती है, मैंने ना अभी पिछले 1-2 महीनों में ना अपनी मामा को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है. तो the woman works like a well-oiled machine on a good day. टक टक 10 बजे उठना है, 11 बजे चाय, किचन, मतलब इतना ज़्यादा सिस्टमैटिक तरीके से शी वर्क्स. आई सी माई फादर नाउ, ही इज़ अभी यूके से आए हुए हैं. तो वो उन्होंने सुबह उठना है, उन्होंने कुरान पढ़ना है, उन्होंने नमाज़ पढ़नी है, उन्होंने चाय लेनी है, पानी पीना है. दोनों हर रोज़ ऐसा करते हैं. और मैं इतनी मैं किस पे गई हूँ? बिकॉज तो बस ये चल रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि वो जीन्स कब किक इन करेंगे, क्योंकि इनसे कुछ तो विरासत पे हमने लिया है ना. लेकिन इंशाल्लाह हम लोग भी इस तरह प्रेजेंटेशंस दे के हो ही जाएंगे, कि इंशाल्लाह हम लोग भी थोड़ा सा ऐसा करके हो ही जाएंगे. आए कीजिएगा. Okay, Ji. Do you guys have any questions? Thank you. Thank you.